Friends, welcome to my channel. I decided to make another video. I'm just in a fasting mode and just had my herbal tea. That's it. I did not even munch on any biscuits or toast or whatever. Just that urge to eat is not there. It happens to me when I binge eat. After sometimes I was not binge eating, I was just eating whatever is normal. But what happens is that it happens to me like this. What do I wanted to say? I wanted to say a lot of things. It's just that I am just whenever I take some serious topic, I get so much of backlash for it. Not that I'm afraid of that backlash, but I don't know how many people can understand what I'm trying to say. लोगों को लगता है कि एंटरटेनमेंट इनसेंट है. लोगों को लगता है वाह हॉलीवुड के गुण गाता जो करते रहते हैं इंग्लिश मूवीज़ भी. वी वॉच इंग्लिश मूवीज़ बिकॉज दे आर सो इंटेलिजेंट. ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता था और मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्रोडक्शन वैल्यूज़ कुछ अच्छे हैं. इट्स नॉट दैट इंडिया इज़ फार बिहाइंड, बट नंदलेस उनका जो थॉट प्रोसेस है वो या स्टोरी लाइन है वो अलग है. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और द कल्चर. सो वी कैनॉट कंपेयर द टू एंड कीप गुण गाता ऑफ हॉलीवुड. उनका स्क्रिप्ट कैसा है, उनका ever since Hollywood has there's an inception of it. They have been into esoteric, mystical, and very dark influences, which they will wrap it up as a romance or comedy or children's movie or very innocently wrapping things, like or they will put in some very revolutionary thoughts into people's head through sex magic. If you've seen Hollywood, they always are pushing um, sex symbols or the pin-up girls, because that is their agenda. Because once you defile yourself through sex, then it's highly impossible to um, reclaim yourself. Other addictions you can, I won't say you can, it's very easy to fight off other addictions, but with sex का क्या होता है ना, because you are sharing your energies with the other person, so it's an exchange of energy, so it's very powerful. अब ये जो सैटेनिक फोर्सेस होते हैं, दे विल ऑलवेज यूज सेक्स or violence or fear or anxiety or insecurity or hopelessness, sadness or despair. They will package it in form of songs or ads or movies or magazines, print media, and or TV or radio, and make it very exciting or make it very fashionable or trendy. Even sadness, to be sad, like to make yourself very miserable, or to keep talking about yourself, about your miserable experiences through songs, through movies, through web series, through plays, through books. Why am I saying this very openly is that if you think the author is best selling, ये बेस्ट सेलिंग एक टैग लगा देते हैं बेस्ट सेलर करके, चाहे उनके कॉपीज़ पड़े पड़े वहाँ पे सड़ते ही क्यों ना हो. लेकिन द मिनट दे से बेस्ट सेलर, उन लोग एक फोमो क्रिएट करते, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि नहीं भाई एवरीथिंग इज़ ट्रेंडी, वी आर मिसिंग आउट, लेट्स जंप ऑन द बैंड वैगन करके. It's the loss of innocence which Hollywood or any of the cinema for that Bollywood don't keep harping about it. कि देखो भाई कितना ग्रेट है, कितना फैंटास्टिक एक्टिंग है, देखो. You all are running behind these people who have alter egos. चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, इनके एक these people as a people are different, and when they are in the stadium or when they are playing their sports or when they are making their movies, they are different. I hope you understand. तो ये बैली या एवरेज या बिलो एवरेज टैलेंटेड रहते हैं,
बट इट्स द वे दे आर पैकेज्ड एंड द वे दे आर मार्केटेड, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सिर्फ इलीट्स का ही क्लब है। वो चाहे कितनी भी गरीबी की कहानी दे दो, एडिक्शन की कहानी दे दो भाई, और कुछ भी दे दो, ड्रग यूज़ देंगे या सेक्स एडिक्शन देंगे या इनकी टेरेबल चाइल्डहुड ट्रॉमास देंगे, जो भी है, बट अल्टीमेटली देयर गोल इज़ टू हुक यू इनटू देम, टू ट्रैप यू इनटू देम। आजकल की एड्स भी देखो कितने वाहियात है, प्रोडक्ट्स देखो और एड देखो, कुछ मैच नहीं करता है। अ चॉकलेट इज़ अ चॉकलेट, वेदर इट्स अ डार्क चॉकलेट और इट्स अ चॉकलेट और अ बिस्किट, उसमें चॉकलेट है, वो खाने की चीज़ है, ठीक है, इट इज़ एसोसिएट विद प्लेजर एंड सेटियाटी एंड वट एवर, बट द वे दे पैकेज इट, उसमें भी सेक्स डालते हैं, मतलब हर चीज़ में सेक्स डालते हैं, चाहे वो परफ्यूम हो सेक्शुअल, वेरी सेक्शुअल, क्लोथ्स हो सेक्शुअल, खाने पीने की कोई भी चीज़ तुम टारगेट कर, हर चीज़ में उन लोग, कस्मेटिक्स देखो, हर चीज़ में लस्ट है, पैशन है, इरोटिज्म है, सेंचुइज्म है। सो दे आर डिफाइलिंग इवन द मोस्ट बेसिक थिंग्स। अभी बच्चों को ही देखो, उन लोग बच्चे भी कैसे बदतमीज़ और हरामी बन गए हैं। तो there's a lot of loss of innocence because the generation is very robotic. It's more like a puppet. It is easily influenced. मैं ये नहीं बोलती कि तुम्हारे दादा दादी या तुम्हारे माँ बाप की जनरेशन के कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट और वाइज थे, लेकिन they were not, वो क्या था ना, दे वर नॉट सो मच एक्सपोज टू मीडिया। ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड होता था, गाने होते थे, प्लेज होते थे, बुक्स होते थे, बट आजकल जो इन्फ्लुएंस तुम्हारे हाथ में है वो दैट इज़ फार मोर डेंजरस, दैट इज़ लाइक अ ड्रग विच कैन, वो एक नशा बन चुका है, एडिक्शन, ऑब्सेशन, पोजेशन बन चुका है। पीपल आर पोजेस्ड विद सोशल मीडिया, इंटरनेट, एंड लोगों के पीपल वो बिलो एवरेज में, खुद ही मैंने 70s 80s देखा है कि अगर तुम चौल में रहते हो तो तुम्हारा नेक्स्ट लेवल ये रहता है कि हाउ टू अपग्रेड योर सिचुएशन। सो वहाँ के लोगों का वो ही रहता है कि हाउ टू बेटर देमसेल्व्स। हमें ऐसा लगता है बट जनरली यही होता है, द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर देम इज़ बिगर हाउस or better jobs or something of that sort. But people who are living in the buildings that time are well set, they are already on the next level, so they उनका और एक next level आ जाता है. So I hope you understand when I'm talking all of this. ये इयरिंग्स कैसे लगे तुम लोगों को, प्लीज़ लेट मी नो। मुझे भी बहुत प्यारे लगे बट आई वांटेड इट टू बी लाइक दिस, बट ये ऐसे है। फूड, अभी ये खाने पीने की चीज़ जो बहुत ही बेसिक है, अभी इस बेसिक चीज़ को भी उन्होंने इतना सेक्शुअलाइज करके रखा है, इतना लस्टी बना के रखा है कि हम समझ में नहीं आता कि खाना खा रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं या खाना ऑर्डर कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग मैस्टरबेट कर रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं या पता नहीं कॉन्डोम बाय कर रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव बाय कर रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना। Imagine me, words have a very profound effect. Now I'll give you an example. मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने पीकॉक के इयरिंग्स, जो कि ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये वाले इयरिंग्स पहने थे, एंड आई जस्ट लव्ड इट सो मच। मुझे इसका झुमका बहुत पसंद आया। मैंने बोला अगर मेरे पास, आई हैव थिंग्स इन दिस, बट मैंने बोला ये बहुत ही सिंपल एंड क्यूट दिखता है, सो आई वांटेड दिस झुमका। सो ये पहन के मैंने लिखा है, मैंने ऐसे वाला पोज मार के ऐसे मैंने कहा है प्राउड एज अ पीकॉक। अभी कितने लोगों को ट्रिगर कर चुका होगा ये सिंपल स्टेटमेंट, कितने सारे लोग इसके ऊपर दिल जला रहे होंगे, बहसबाजी कर रहे होंगे। आई नो कि मेरे जो कज़न्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं दिस डे शी इज़ वेरी फैशनेबल एंड शी इज़ अपलोडिंग ऑल द टाइम हर स्टेटस। तो जो घमंड और ज़िद करके बैठे हैं कि नहीं मैं उसका स्टेटस नहीं चेक करूँगा, वो भी चेक करते हैं जस्ट टू सी माई न्यू लुक।
तो इट इज़ दैट वे. तो सिनेमा इज़ ऑल्सो लाइक दैट. इट क्रिएट्स क्यूरोसिटी कि अभी सेक्स करेंगे करेंगे लेकिन करते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, unless and until you're watching porn. So that excitement of wanting to see more, जैसे killing, they making killing very, जैसे मच्छर को मारते हैं ना, अब विलन के लोगों को भी मारना है तो मच्छर की तरह मारते हैं, and they are feeling very proud about it. गेमिंग, आई फॉरगॉट टू नेम गेमिंग, आजकल गेमिंग ज़्यादा ये है. तो killing has become like killing a mosquito, killing a human being. Why? Because the other person is bad, so we are killing them. Or we are defending ourselves. Oh, it's just a game. No, we are not feeling. In the media they will always contradict themselves. जैसे हमें लगता है कि we become very intelligent watching the narcissism channel or channel on psychology or psychiatry, but they'll always contradict themselves constantly. अब 101,000 disorders होने की ज़रूरत नहीं है. If you're एवरी पर्सन कम्स विद अ सेट ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड जेनेटिक्स. तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो. तुम्हारी सोशल कंडीशनिंग कैसी है, सोशल प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग कैसी है, वो भी हमें सोचना पड़ता है कि तुम कौन से बैकग्राउंड से आते हो. तो वन कैन ओनली मॉडिफाई दिस मच. तुम कितना भी नॉलेज करो, कितनी भी टेक्निक्स करो, कितनी भी मेडिकेशन करो, वो इट कैन जस्ट बी अंडर कंट्रोल. इट कैन नॉट गो आउट ओवरनाइट. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने वाली हूँ. सो यू डोंट नीड टू हैव अनदर डिल्यूजनल डिसऑर्डर. इफ यू आर अ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी मीन्स यू आर डिल्यूजनल, यू आर लार्जर देन लाइफ, यू हैव एन ऑल्टर ईगो. What I'm trying to say, even I'm saying people also use alter egos. जैसे कैसे मैं बोलूँ, जैसे हमें लगता है ये बच्चा क्वाइट है, बट वी डोंट नो दे मस्ट बी अ सिनिस्टर साइड टू इट, दैट दे मस्ट बी अ लॉट ऑफ मस्तीखोर बच्चा, बट दे मस्ट बी सम नाइस साइड ऑफ दैट बच्चा और समथिंग बेटर. सो वी देर इज़ अ टू साइड्स ऑफ द कॉइन. तुम ये मत सोचो कि ये बच्चा क्वाइट है. वी डोंट नो, ही माइट बी अ साइकोपैथ. I'm just giving an example what I've seen and observed around. So when I see people around ना, कि कभी कभी उनके हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे समझ में आता है, लेकिन बट आई शट माई माउथ. मुझे ये समझ में आता है कि इनका डाइट कुछ तो ख़राब है, या इनका जो बिलीफ सिस्टम है, इनके डीप रूटेड जो बिलीव्स है, यही इनको परेशान करते हैं, यही इनकी बीमारी का कारण है. लेकिन मैं आई होल्ड माई सेल्फ बैक. Sometimes I just want to whack them and tell them, bitch, just this is what your problem is all about. It's nothing to do about your illness is a state. मन की बीमारी है, तुम्हारी तन की बीमारी है basically. I used to suffer from a lot of aches and pains. Do I get aches and pains at the moment? They are barely there. Means manageable. Means they are barely there. Probably because my diet has improved, my thought process has improved so much more, and I'm more relaxed. I'm more grounded at the moment. तुम सोशल मीडिया में जितना घुस जाओगे ना, तुम उतने ही पागल हो जाओगे. पहले के ज़माने में पीपल यूज टू फील वेरी प्राउड, क्योंकि टीवी भी लिमिटेड रहती थी. टीवी होती थी काफ़ी. बाय द 90s ऑल द चैनल्स हैड कम डाउन, एंड सो एवरीथिंग वाज क्वाइट ओपन. सो पीपल यूज टू फ्लॉन्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, एंड डॉक्यूमेंट्रीज विच दे वॉच ऑन सम वेरियस चैनल्स एंड ऑल दैट. तभी इंटरनेट भी आया था. So people used to go on various websites and boast. I hope you understand. अभी क्या है ना, everything is in your hands. So छोटे छोटे बच्चे भी ओवर एक्टिंग करने लगे हैं. You won't believe these pigeons are so stupid. Stupid ही बोल सकते हैं.
लाइक मेरा लेमन ग्रास पूरा तहस नहस कर दिया। वो धनिया कोरिएंडर को मैंने हार्वेस्टिंग के पूरा का पूरा पूरा बंच वो लेके गए। आई डोंट नो दे आर बिल्डिंग अ नेस्ट और क्या कर रहे हैं उन लोग ना, पूरा तहस नहस किया। नाउ द मिंट इज़ ऑल राइट, वो मिंट को पिक कर रहे थे लिटरली, because it's a bird brain, they are programmed to do so. So sometimes I feel we are no less, we are like this pigeon, mindless. We are doing it because we are programmed to be doing certain things. जैसे मैं एक पिजन को देखती हूँ, शी सिट्स ओवर हियर इन वन कॉर्नर वेरी अनकम्फर्टेबली व्हेन शी कैन सिट डाउन ऑन अ पैरापेट और आराम से वो सो सकती है। शी सिटिंग ऑन दैट, वो जो ग्रिल्स है ना मेरे, वो ग्रिल के ऊपर अनकम्फर्टेबली बैठी रहती है पूरा रात, जबकि शी कैन सिट बिलो द पैरापेट इन अ कॉर्नर एंड स्टिल बी सेफ। इट्स देयर नीचे पैरापेट है क्योंकि बैल्कनीज तो होते हैं ना, तो सामने थोड़ा एक्सटेंशन सो दैट वो प्लांट्स वगैरह कपड़े सुखाने के लिए। वेरी स्ट्रेंज, मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि वी आर लाइक दीज पिजन्स, स्टूपिड। हमारे पास दिमाग होते हुए भी, चलो ये तो बर्ड ब्रेन है तो वो उतना ही करेंगे जितना उनके सामने है और जो उनके पेरेंट्स करते थे, या उतनी उनकी समझ है। हम भी वैसे ही है, जो हमारे पेरेंट्स करते थे या हमारा आसपास का माहौल जो करता है, या पीयर प्रेशर होता है, या जो आसपास पब्लिक करती है, हम वही फॉलो करते हैं, हम कुछ नया नहीं करते हैं। तो पिजन्स और हम में कोई भी फ़र्क नहीं है एक्चुअली। अगर मेरा फेस अच्छा दिख रहा है, चमक रहा है एट द मोमेंट, इज़ बिकॉज आई एम रिलैक्स्ड। ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, मुझे भी मेरे सेट ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट नाउ आई एम हैंडलिंग दैम डिफरेंटली। इमेजिन इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग एंड हीलिंग माई सेल्फ, अगर मैं एक क्लटर के पीछे भागती तो अगर मैं ये सोचती कि मेरा घर इस तरह से है तो मैं ये इसको सजाने संवारने में लगती, तो मैंने बोला इसको मैं सजाने संवारने के लिए टाइम नहीं लगता है, बट यहाँ जो टूटा फूटा है ये तो संवरे ठीक तरह से। तुम लोग इतना गुणगाता करते हो ना ये स्टूपिड टीवी सीरियल्स देख के, व्हेन पीपल डिस्कस टीवी सीरियल्स मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ मचती है, कि डीप डाउन चिढ़ मचती है, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ मैं टीवी नहीं दिख रही, सो आई डोंट नो। साउंड्स वेरी स्टूपिड बट दैट्स द वे माई आंसर इज, एंड समटाइम्स आई हैव टू जस्ट, स्टूपिडिटी है ना, उसमें डिस्कस क्या करने की बात है। कुछ रियलिटी टेलीविज़न पे डिस्कस करेंगे, फिर और कुछ डिस्कस करेंगे, फिर और कुछ डिस्कस करेंगे। That's all I wanted to say, is that we have become so numb in our heads ना, कि हमें, we are afraid to do something different because we are so happy doing tried and tested things. We are happy, हमें कोई मतलब नहीं बनता है किसी और चीज़ से। मैं रियली आई एम टेलिंग यू, जब मैंने फेक गुरु शुरू किया था, बिकॉज आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, एंड मेरा रिसर्च हमेशा चालू ही रहता है।
when I want to talk on certain topics so flawlessly, इतना ज़्यादा आता है because I spend hours and hours analyzing something, right? So मुझे इतनी सारी backlash मिली फ्रॉम द यंग क्राउड. मैंने बोला ये इतनी डिब्बा क्राउड है, ये इतना ज़्यादा पपिट है, ये इतने इडियट्स है कि मुझे इनके ऊपर दया आ गई कि दे टुक इट लाइक अ पर्सनल, जैसे बोलते हैं ना, पर्सनल अटैक. जंग छिड़कते. आई हैव सीन औरतें बीइंग बिगेस्ट हरामीज. हाँ, जब उनकी शिवानी या किसी उनके बिलावेड लोगों के बारे में बोला तो ये काटने दौड़ने आई है औरतें. मैंने बोला ये कितनी बेअक्ली है. दे माइट बी सीमिंगली इंटेलिजेंट, सीमिंगली एजुकेटेड, वट एवर, बट वी शुड सी देम इन द कमेंट सेक्शन. लिटरली दे वर स्टूपिड, दीज वुमेन. Sorry, I think this has come out. They thought that by defending their beloved, whoever Shivani or something, then they become very. It's like they felt triggered because I was attacking a belief system. How can this happen to me? I am such a perfect person, and I see I am following, and the younger crowd chutiya ka chutiya hai. Seriously, I'm telling you. प्रशांत त्रिवेदी को पर्सनली आके उसके ऊपर उसी के चमचे शायद आते होंगे. अभी तो वीडियो भी नहीं है, 3 मिनट का वीडियो 2 साल से था, यूट्यूब ने निकाल दिया. क्या मीनिंग बनता है उसमें? तो मैंने ये भी कहा था, आई फील लाइक पंचिंग हिज फेस बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग मोर अबाउट इट. सिर्फ मुँह पे कहा था ये. 3 मिनट का वीडियो. उसमें मैंने बोला आई एम सो बोर्ड वॉचिंग इवन 12-10 सेकेंड्स ऑफ हिज वीडियो दैट आई डोंट वांट टू गिव एनी रिव्यू. मैंने रिव्यू भी नहीं किया था, जबकि मैंने रिव्यू किया ही नहीं था. सिर्फ 2-4 शब्द कहे थे. एंड पीपल आर सो ट्रिगर्ड एंड इनसिक्योर्ड एंड क्या बोलते हैं, वायलेंट एंड एंग्री एंड रेजफुल एंड रिवेंजफुल एंड फुल ऑफ हेट. फॉर वॉट? इफ़ यू आर ऑन द टॉप ऑफ द टॉप्स यू विल नॉट बी बॉदर्ड. मेरे तो सिर्फ 200-300 सब्सक्राइबर्स थे एकदम 2 साल पहले. 400 भी नहीं थे. $500 भी 1 साल पहले हो गया शायद से. आई थिंक सो. One and a half year ago. सो जैसे मैं कुछ बोलती हूँ लोगों के पर्सनल बिलीफ सिस्टम पे अटैक हो जाता है. जैसे हम अटैकिंग देम पर्सनली नहीं, ऐसी बात नहीं है. आई एम गिविंग माई जनरल ऑब्जर्वेशंस. When I say women, all the women are not in that category. The category pertaining to the content which I'm talking to, right? शायद मेरे कहने का तरीका बहुत savage होगा. मैं भी एक औरत हूँ. The way women are portrayed in media these days, it hurts me. Even in the past, see, I used to watch a lot of Hollywood movies. I've seen a lot of silent movies of the early 1920s, उसके पहले के भी. then 30s के मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे मूवीज़ कवर अप किया, 100+ मे बी. आई यूज़ टू लव हॉलीवुड विंटेज मूवीज़. 40s के मुझे इतने ज़्यादा खास पसंद नहीं, बट आई यूज़ टू प्रिफर द एंटायर जो है ना 30s 35 30 द एंटायर 30s का जो ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता था. 40s का वो आते आते ना वो थोड़ा सा वो हेवियर बन गया. बट इट्स नॉट दैट दे वर नॉट डार्क इन देयर थीम जस्ट बिकॉज दे वर क्यूट और समथिंग. नो, दे हैड देयर शेयर ऑफ पुशिंग एजेंडाज बैक देन. The fashion sense or the way they used to speak or the furniture, the entire interior, whatever, I don't know what it was, but I was fascinated with it. And the more crazy and quirky a female will become, then she becomes special. ऐसा कैसा है ये? So I have to always behave quirky and crazy and nerdy and cringy or something cheesy, corny, so that I become cute, or either I become very cute or either I become obnoxious. There is no middle path.
यू नो, आई एम टॉकिंग टू यंग गर्ल्स एट द मोमेंट. तुम अपने पेरेंट्स से चिढ़ चिढ़ जाओगे फॉर गिविंग यू सो मच लिबर्टी. एंड तुम इतना चिढ़ जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि क्यों तुम्हें करेक्ट नहीं किया गया एट द राइट टाइम, बिकॉज दे आर सो लिबरल, or because they are so indifferent, or because they are so insensitive. My face is looking better. When you feel grounded, your face will show your inner emotions. तुम जितना भी कॉस्मेटिक्स थपाओ, तुम कितने भी एक्सरसाइज करो, तुम कितना भी हेल्दी डाइट करो, तुम जितना भी पार्लर में जाओ, स्पा करो, मसाज करो, if your inner soul or spirit is not healthy or is not aligning with your body, mind and spirit, I'm telling you something, you will look rotten. No wonder all these people इतना कॉस्मेटिक थोपते भी सैटेनिक और रॉटन और टॉक्सिक क्यों लगते हैं, because it doesn't match the outward appearance, doesn't match with the inward foundation. When you're grounded, when you're comfortable with your own skin, that's the time when your skin starts shining through. मैं वही हूँ. The very reason is that I'm feeling more grounded, that's it. I had an amazing day. Last Christmas मैंने कुछ भी नहीं खाया था, and there was so much of महाभारत happening around. वो जंग खुल के आने वाली थी. इट्स जस्ट मैं किसी के हाथ नहीं लग रही थी. दैट इज़ वन अनदर थिंग. लेकिन महाभारत तो महाभारत है ना, वो कभी ना कभी कुरुक्षेत्र तो बनना ही है. लोग ज़मीन जायदाद के लिए खून भी करते हैं. मैं अब तक ज़िंदा हूँ. ब्लैक मैजिक करते हैं कि कहीं ने ये इंसान छोड़ के भाग जाए या मर जाए या बीमार पड़ जाए. मैं अभी तक ज़िंदा हूँ. मेरे एनिमीज़ की मैं लिस्ट बनाऊँ, वो फालतू के एनिमी एक होगा, उसके फ्लाइंग मंकीज़ 15-20 होंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी एनिमी. नाम ना क्या, मान ना मान तू मेरा मेहमान, कहीं से मुंह उठा के चले आ जाते. मैंने बोला मेरा तुम्हारा क्या रिलेशन. बट ये मेन लोगों के साथ दोस्त है, एसोसिएट्स है, फ्लाइंग मंकीज़ है, पार्टनरशिप है, तो वो सारी जो भी टीम, वो टीम बन जाता है. तो उस हिसाब से 40-50 60-70 पकड़ के चल सकते हैं हम लोग. आई होप यू से. और वो क्या होता है ना कि वो सटल अब्यूज़ बाय प्रॉक्सी भी चलता रहता है. मैंने बोला लेना देना नहीं है, मुँह उठा के चले आ जाते. मैंने बोला तेरा कोई काम भी नहीं है इसमें. वाई वुड आई वेस्ट माई टाइम बीइंग एनिमीज़ जिनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है. बट इफ़ यू वांट टू बी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, बिकॉज आई डोंट कंसिडर यू इन दैट लिस्ट. पहले मैं लोगों को काफ़ी पर्सनली लेती थी. अभी मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी न्यूट्रल. तो लोगों को उससे भी चिढ़ मचती है कि वाई एम आई न्यूट्रल, वाई एम आई नॉट शोइंग एनी इमोशन. वाई वुड आई शो एनी इमोशन. सामने से तुम लोग ही मुंह बनाते हो, तुम लोग को ही बातें नहीं करनी है. जब मैं चुप रहती हूँ, देन यू ऑल वांट टू टॉक टू, देन यू ऑल वांट मी टू रिएक्ट or want me to chase you all and run behind you all and ask you all why you all are not talking to me. और तुम लोग को मैं भाव देती फिरूँ और तुम लोग को वर्शिप करूँ या तुम लोग को क्या करूँ, मैं अभी समझ में नहीं आता. आई हैव सीन दैट नेचर. मैंने काफ़ी पॉन्ड पार्क में भी देखा है, क्योंकि वहाँ पे पूरे सीनियर सिटीज़न ऐसे रॉटन टाइप ऑफ लोग ही रहते हैं. जैसे ये आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. कैसे मैंने, इसलिए मैंने बातें करना ही बंद कर दिया. उनके पीछे भागना दौड़ना पड़ता है. किस लिए? दे मेक इट लाइक अ फीलिंग लाइक दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट. इसलिए मुझे वो ना, जब उस ट्रेजरर ने मुझे बोला कि विल यू प्लीज कैन यू जॉइन द, मैंने बोला 500 रुपये की बात नहीं है. 500 रुपये में मैं 5000 टाइप के नमूने और बीमारियाँ अपने लिए पैदा करूँगी. इनके एक ऐसे वियर्ड एटीट्यूड्स है, वियर्ड बिहेवियर है, मैं क्या बताऊँ. आई गो देयर बिकॉज आई लव द सनराइज, आई लव द एनवायरनमेंट. मुझे किसी से वहाँ पे ख़ास दोस्ती करने का कोई शौक़ नहीं है.
मुझे प्लांट से मतलब है, जब चाहिए मैं मांग लेती हूँ, नहीं देते तो इट्स ओके, देते हैं तो ठीक है। अब वो प्लांट्स लेने के लिए इनका मुँह, दैट डजंट वर्क आउट लाइक दैट ना। आई ऑलवेज टीज देम, आई से अरे बाय टेल द वॉचमैन, उसका नाम स्वामी है, मैंने बोला बहुत टाइम हो गया फुक्कट की चाय नहीं पिया, अभी फुक्कट की चाय भी पियोगी, नाश्ता भी, इसलिए हाँ आइए ना मैडम, आइए ना। आई जस्ट टीज, बट मैं जाती नहीं हूँ, मैं होती ही नहीं हूँ। मैंने एक बार मैंने बोला चाय और नाश्ता तो दूर की बात है, यहाँ तो लोगों के चेहरे सड़े हुए पकौड़ों की तरह बन जाते हैं जब पानी मांगते हैं, तो पानी मिलना मुश्किल है तो चाय क्या मिलेगी यहाँ पे। सो आई लाफ एंड क्या मैडम आप भी ना, सच्ची में। Then once what happened, I just purposely said this in front of the member. I said या तो आप तो चाय की बात कर रहे हो, मैंने बोला यहाँ तो पानी भी मांगना पाप है, पानी भी मुश्किल से मिलता है, जाने दीजिए। देन दैट मेंबर से नहीं नहीं आप आइए ना, आपके लिए चाय नाश्ता मिलेगा। इफ़ यू आर प्रिटी ब्यूटिफुल और तुम्हारी फिगर अच्छी है, तुम स्टाइलिश हो, तो सामने से इनविटेशन। अगर तुम प्लेन सिंपल जाड़े बटाटे हो तो तुम्हारे पास पैसे भी है तो कोई केयर नहीं करेगा तुम्हें। इफ़ यू आर नॉट ग्रूम्ड, यू आर नॉट बॉर्ड, तुम ऐसे अनलेस एंड अनटिल तुम पैसा देके अपना फ्लॉन्ट ऑफ करते हो फिर भी। बट इफ़ यू आर स्टाइलिश एंड इफ़ यू आर लाइक थोड़ा भाव खाते हो तो सामने से। अब आधे से ज़्यादा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती है बिकॉज आई एम टॉल एंड स्लिम एंड फैशनेबल और स्टाइलिश, वॉट एवर। इफ़ नॉट फैशनेबल देन आई एम वेरी स्टाइलिश, और थोड़ी सी खड़ूस भी हूँ तो चलो दुनिया भर का भाव मिलता है। फिर वो एंग्री भी, गुस्सा भी होते कि ये भाव क्यों खाती है, व्हाट डज शी एक्ट, व्हाई डज शी एक्ट सो स्मार्ट। आई एम नॉट एक्टिंग स्मार्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इनडिफरेंट। मैं ना, आई नो सम ऑफ माई रिश्तेदार, वो ना उनके घर पे डिनर पे जाओ, आई टेल यू, मैंने बहुत सारा डिसरिस्पेक्ट देखा है। जैसे अगर वो मेल रिलेटिव, मेरे रिलेटिव, तो उनकी बीवी या बेटियां बहुत बकवास बिहेव करेंगी, उनकी बीवियां इतना डिसरिस्पेक्ट करेंगी, फिर इनके बच्चे इनको इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा एनवायरनमेंट होता है। तो जब भी मुझे किसी गैदरिंग में जाना होता है, इट इज़ लाइक गैदरिंग है, खाना खाया वापस आ गया। लेकिन ख़ास किसी रिलेटिव के घर पे जाने को ना अनप्लेजेंट लगता है बहुत ज़्यादा। वो बचपन में चलता था कि तुम जाते थे वापस आते थे, टीनेज लाइफ में भी ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया ना कि आई फील वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल। फिर उनकी वो गुण गाथा, हमारे ज़माने में हम ऐसे थे, हम कितने ग्रेट है। और एक रिश्तेदार तो ऐसे है कि उसकी कथा कादम्बरी ख़त्म ही नहीं है। सत्यनारायण की कहानी भी 6-7-8 घंटे के बाद ख़त्म होगी, लेकिन इसकी तो ख़त्म ही नहीं होती है, पुराने ज़माने की अपनी, वेर ही इज़ जस्ट गोइंग अराउंड बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ। फिर उसकी वाइफ वो मुंह बनाती रहती है, वो अनदर रॉटन फीमेल है। और व्हेन ये तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें बैठ के खाना खाना है, फिर इनके घर में स्नैक्स भी पूछने को डर लगता है, कोई चीज़ छूने को भी डर लगता है। आई रिमेंबर लास्ट टाइम आई वॉज वेरी हंग्री एंड आई वॉन्टेड टू से कि आई हैव अ प्रॉपर मील। मेरे मुंह से इतना तक निकला कि आई हैव अ प्रॉपर मील, लेकिन वो चीज़लिंग्स और वो बिस्किट खा के मुझे और गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला भैंडी या लीव, अब मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आ जाऊँ। और जब डिनर का भी टाइम था ना, वो कुछ अंडा भुर्जी खाने गए, तो मेरा दिमाग और भी आउट हो गया। मैंने बोला आई एम लॉन्गिंग टू ईट सम नूडल्स और राइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ऐसे क्रैकपॉट लोग होते हैं, कंसिडरिंग दैट दे हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और दे कंसिडर देम सेल्फ पॉश, बट दे हैव वेरी वेरी वियर्ड एंड स्टूपिड। अभी तुम डिनर पे भी जाते हो तो डिनर पे जाओ ना प्रॉपरली। का अंडा भुर्जी खाने कोई जाता है क्या? तो तुम वो घर पे भी बना सकते हो। देन दैट रिलेटिव सिंह, अरे मैंने 600 रुपये खर्च किए अंडे पे, तो जाने को किसने कहा था? सो ऐसे स्टूपिडिटी लोग करते हैं। जबकि मेरा दिल बोल रहा था कि अंडा भुर्जी खाने, तो घर पे ऑमलेट बन सकता है ना, कोई ये खाने जाता है क्या बाहर बाकड़े पे? एंड दैट टू दे वो ऑर्डरिंग सो मेनी थिंग्स। वो बीमार टाइप भी है। मैंने बोला ये कौन खाएगा इतना? नहीं नहीं हम लोग ये सब ऑर्डर। मैंने बोला ये नहीं ख़त्म होगा, यू नो हाउ इट इज़। वो जब तुम्हें अंडा देते वो कितना सारा वो टमाटो कांदा वो कितना मसालेदार बनाते हैं ना। यू कैन नॉट बी ईटिंग ऑन अ एम्प्टी स्टमक सो मच। मुझसे तो खाया ही नहीं गया। मैंने पापड़ खाया, मैंने 1 या 2 ब्रेड खाए होंगे उसके साथ, और यहाँ तक आया मुझे, जबकि आई वॉज डाइंग टू ईट समथिंग बेटर। तो आई रिमेंबर नॉट, ये फर्स्ट टाइम ही नहीं हुआ, लास्ट टाइम आई रिमेंबर कुछ बहुत साल पहले सैंडविचेस ऑर्डर किए थे। मैंने बोला ये कपल थोड़ा क्रैक है लगता है।
एब्सोल्युटली, बातें तो बड़ी बड़ी का लाखों करोड़ों की, हरकतें गरीबों जैसी, मिडिल क्लास से भी बदतर। और 24 घंटे ची 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 ची, वी आर सो ग्रेट, वी आर सो परफेक्ट, वी आर सो डिफरेंट, वी आर सो यूनिक, वी आर डिज़ाइनर, वी आर दिस ब्ला ब्ला ब्ला। और उनके वो घूमने फिरने के एक्सपीरियंसेस और पता नहीं पुरातन का दूसरे रिलेटिव्स, इंसान मर जाएगा। हाउ कैन यू डू सो मच ऑफ सेल्फ प्रमोशन? और हर चीज़ में डर लगता है। फिर एक डॉगी भी रहता है इनके घर में, डॉगी को पर्पसली रखा होगा ताकि दूसरे लोग ना आए। बहुत वियर्ड फीलिंग आता है। जिसके घर में पेट्स होता है ना, आई वुड लोगों को खाने पीने की थोड़ी सी तकलीफ जैसी हो जाती है वहाँ पे, बिकॉज द पेट कम्स एंड वो खाने की तरफ दौड़ के आ जाता है, या वो जितना भी डिसिप्लिन में, बट अ पेट इज़ अ पेट, राइट ना? या वो खुद ही खाना करता है, या उसका पॉटी टाइम रहता है, या आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इट्स प्रैक्टिकली वियर्ड। आई एम नॉट अगेंस्ट हैविंग पेट्स इन द हाउस, बट pets are pets, they're like kids, how much can you discipline them? बातें बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की, और पुरातन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स मैंने ये किया था वो किया था, और द ब्लेटेंट disrespect which their children show to their disgust and hatred which they show to the relative or to the parent, I don't know what it is, but constantly making faces, being very sarcastic, being indifferent, being insensitive, वो किसको चाहिए? क्योंकि ये फ्री रहते हैं। इफ़ दे आर इन योर 50s, लेट 50s एंड 60s, यू आर फ्री, तुम रिटायर होते हैं, नथिंग बेटर टू डू इन लाइफ। तो बस तुम किसी ऐसे रिलेटिव्स को अडॉप्ट करो जिनका कुछ कंट्रोवर्सी या स्कैंडल चल रहा है, और मज़े लूटो उसके ऊपर, या सेवियर बनने का नाटक करो और इन्जॉय करते रहो तमाशा। तो ऐसे भी लोग होते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम स्पीकिंग एवरीथिंग इन वन लाइक अ भेलपुरी राइट नाउ, बिकॉज मुझे एक ये टॉपिक मुझे कवर अप करना था। द ब्लेटेंट disrespect which women are showing to their men these days is mind boggling. It's beyond limits. And women disrespecting themselves also is very blatant. वो कुछ भी वाहियात हरकतें करते, अपने ही घर में अजीब अजीब हरकतें करते। यू हैव इन्वाइटेड अ गेस्ट, यू हैव इन्वाइटेड देम ना, तो हम पे उपकार कर रहे क्या? मेकिंग फेसेस और ताने मारना और घर का काम करना रिगरसली। एक तो तुम लोग ने ही इनवाइट किया है, अगर तुम्हें भारी लगता तो इनवाइट मत करो ना गेस्ट्स को। तो ये उनको बुला के तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर कुछ चीज़ उठा के जब देंगे जो उन लोग खाते नहीं है, उनके फ्रिज में पड़ी है काफ़ी टाइम से, मतलब ऐसे देते वक्त ऐसे करेंगे जैसे वो कोई महादानी है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और कीप इन टच मतलब गिव अस अपडेट ऑफ योर डेली लाइफ। और कुछ स्कैंडल वैंडल है तो बताना, हमें तो बड़ा मज़ा आएगा। हम लोग प्रिटेंड करेंगे दैट वील सपोर्ट यू, बट तुम्हारी मारते रहेंगे। सो आई एम टेलिंग ऑल दोज पीपल ये सोचते कि हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, का ऐसे ऐसे रद्दी सपोर्ट से तो अच्छा है कि सपोर्ट ना मिले। वी ऑल नीड सपोर्ट सिस्टम, बट जेन्युइन सपोर्ट सिस्टम। अगर जेन्युइन सपोर्ट सिस्टम मिलता है वो सामने से ही तुम्हें मिल जाएगा। गॉड इज़ ग्रेट, कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा। लेकिन ये रद्दी रिलेटिव्स और ये नेबर्स और ये कम्युनिटी सर्विस के लोग, कम्युनिटी के लोग बहुत ही मुझे वाहियात से लगते हैं। ये जो नेबर आंटी मुझे जो प्रेयर भेजती है, मैंने बोला उस मतलब तूने कभी ये सोचा है कि तू मुझे कुछ बना के अपने हाथ से कुछ कभी खिलाए? बोलती रहती है लाइक माई डॉटर टू, हैव यू डन एनी ऑफ दोज थिंग्स फॉर मी, और हैव यू इवन बीन बॉदर्ड कि पिक्ड अप द फोन एंड सेड हाउ आर यू शांति? कहीं मुझे रास्ते में मिल जाए, ओ आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू सो आई एम सेंडिंग यू प्रेयर्स। हाउ स्टूपिड इज दैट? मैं बोलने वाली थी डोंट सेंड मी, तू पागल हो चुकी है, तू अपना पागलपन मेरे सर पे मत मर। मैंने नहीं कहा है तुझे भेजने के लिए वो सारे प्रेयर्स।
जेन्युइन कंसर्न तो कभी आता नहीं है। मैंने कभी उसने कहा कि हाउ आर यू शांति, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग, यू नीड एन समथिंग एंड वी आर ऑलवेज देयर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओ आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, हाउ स्टूपिड इज दैट। और बात करते करते ओ हैव टू गो एंड गेट सम मिल्क, ओ हैव टू गो एंड बाय सम वेजिटेबल्स, oh I'm so tense, look at me, oh nobody's helping me, this that। मैंने बोला बहन चो तेरे पास करोड़ों रुपया है, why do you need any help from anyone, हेल्प मुझे चाहिए। एक बार भी उसने कोई चीज़ मेरे लिए कुछ खास नहीं किया, भेजा, यू आर लाइक माई डॉटर। मैं बोलने में क्या जाता है, त्यौहार है तूने कुछ स्वीट्स भेजे या मुझे या तूने मुझे विश किया, कुछ नहीं। जब ये लोग ऐसे फालतू की बातें करते हैं ना, बहुत इरिटेटिंग इरिटेटिंग लगता है। इसलिए मेरा दिल अभी किसी के साथ बातचीत करने का करते नहीं, बिकॉज दे ऑल टाइम वेस्टर्स। हाय हेलो फॉर्मेलिटी, मैं भगवान को बोलती हूँ ना मुझे न्यूट्रल बना दे, सो दैट आई कैन जस्ट से हाय हेलो टू पीपल, नाइदर यू आर माई फ्रेंड और माई एनिमी, मुझे ना लेना देना। मैं यहाँ पे न्यूट्रल भी बनूँ ज़बरदस्ती, मेरे खिलाफ मैं सेना खड़ी रहती है। लाइक लिटरली आई हैव सीन पीपल जिसे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो भी मेरे दुश्मन बन जाते हैं। मे बी देयर इज़ अ लॉट ऑफ जेलसी फैक्टर ऑल्सो, क्योंकि आई एम अनबॉदर्ड एंड मैं अपना खुद का बोल के निकल जाती हूँ, डंके की चोटी पे, वो भी मुँह पे बोल के जाती हूँ लोगों को, ऑन टू देयर फेस। तो वो भी वो गट्स देख के इनके पेट में दर्द होता होगा। सो डोंट लुक आउट फॉर कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ये करेगा, समझेगा, हस्बैंड समझेगा, ये समझेगा, वो समझेगा, नहीं। टेक थिंग्स ऑन योर। कभी कभी मुझे लगता है ये औरतें ज़्यादा हरामी टाइप रहती है देन द मैन। मैन क्या है ना, वो दिखाते नहीं है। मैन को क्या मतलब होता है कि उनको फ्लर्ट करना है, ऊपर से क्रिटिसाइज़ करेंगे बट दिल से वो चाहेंगे कि नहीं यार, गुड लुकिंग फेस, गुड लुकिंग पर्सनालिटी या बॉडी के साथ हमें बातचीत करने को मिलता है। नाटक नखरा करेंगे क्रिटिसाइज़ करने का, बट व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ देम कैसे इसे मोमबत्ती की तरह, वैक्स की तरह पिघलेंगे। अब पिछले नवंबर, स्पेशली नवंबर दिसंबर से मेरे अंदर एक अलग ही बदलाव आ गया है। पहले मैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एंटरटेन करती थी, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्मेलिटी। अभी मैं बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं कैरी नहीं करती हूँ। अभी कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, अभी मैं इमेज बिल्डिंग में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बोले भाड़ में गया, ओके भाई, दिस इज़ व्हाट यू फील, दिस इज़ व्हाट यू फील, ग्रेट, गुड फॉर यू, डोंट वांट टू टॉक, डोंट टॉक। वैसे भी मुझे तुम लोगों से कोई काम धाम नहीं। आई यूज़ टू डू दैट। मैंने देखा कि मैं थोड़ा लोगों को चेस का मुझे पसंद नहीं आता था, वो वाली फीलिंग। आई वॉज जेन्युइनली नाइस सर कि नहीं भाई, आई हैव टू बी नाइस टू पीपल करके। अभी भी आई एम नाइस, बट नाउ आई डोंट गो आउट ऑफ माई वे टू या तो ज्ञान देना या तो ऑफर हेल्प और प्रिटेंड टू बी दिस ओवर फ्रेंडली पर्सन। आई डोंट डू ऑल दोस थिंग्स एनी मोर। I'm more calm and composed. This is what I wanted to tell you all. Believe in your God, believe in yourself. अपना डिप्रेशन, when I have gone through a lot of depression myself, but it was subtle, it was not seen, it was not seen day to day में, लाइफ में गुजरता था मेरा लाइफ, बट डीप डाउन आई वॉज गोइंग थ्रू अ सर्टन पीरियड इन माई लाइफ, क्योंकि आई हैड जस्ट गिवन अप ऑन लाइफ। आई सेड अब जो होता है देखा जाएगा। फ्रॉम दैट फेज टू दिस फेज यू आर सीइंग शांति। तो मतलब इतने सारे सेटबैक्स, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। इफ़ आई कैन गो थ्रू ऑल दैट एंड स्टिल मेक सिट हियर एंड मेक अ वीडियो, मीन्स ये मेरिकल से कम नहीं है। एंड इफ ऑल ऑफ दिस आई हैव ओवरकम इज ओनली बिकॉज ऑफ माई फेथ इन गॉड, दैट्स इट। लोगों का क्या है,
जब मैं मुझे रिलेटिव्स के साथ बातें करनी है ना, मुझे हेडेक हो जाता है कि भाई अब इन 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 सैम्पलों के साथ मुझे बातें करनी है, बिकॉज दे ओनली जस्ट नीड एन अपडेट फ्रॉम माई लाइफ, नॉट दैट दे आर कंसर्न, दे आर नॉट क्यूरियस। उनको मज़े लूटने हैं, कोई स्कैंडल है, कंट्रोवर्सी है, गॉसिप है, रूमर है, उसके ऊपर मज़े लूटने हैं उनको। हाँ। लोगों को इससे जलती है कि ये खुश कैसे है, ये इतनी अच्छी कैसे दिखती है। I'm done. I'm done. I have come through life in such a way ना कि अभी मेरे सामने कोई बातें भी करता है ना, मेरा ऐसा चेहरा रहता है कि आप बकवास बातें कर रही है ये या ये पर्सन, कैन यू जस्ट कीप इट ब्रीफ। समटाइम्स आई फील लाइक सेइंग ओके ओके, आई हर्ड इट। सॉरी टू से, बिकॉज आई थिंक आई हैव कम टू द स्टेज इन माई लाइफ। अब मुझे यूजलेस कम्युनिकेशन भी कैसे 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 तो भी लगता है, रियली। नेक्स्ट टाइम आई सी दिस नेबर आंटी ना, आई टेल हर हाय हेलो करके। मुझे उसकी बेकार, वो हमेशा रोती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ मिजरेबल, मतलब उसको देख के ही मिजरेबल फीलिंग आ जाती है। फिर बात करने से तो मैं फुल टोटली, मतलब इंसान एक डिप्रेशन में चला जाएगा। सो आर दीज रिलेटिव्स, इनकी पुरातन काल की स्टोरीज़, फिर यहाँ वहाँ की गॉसिप वाली दूसरे रिलेटिव्स की स्टोरीज़, मतलब इंसान बीमार खाट पकड़ लेगा। इसलिए मैं भगवान से लिटरली ऐसे, लॉर्ड प्लीज़ मुझे गाइड कर, या तू मुझे ही बचाए इन कौओं, चील कौओं से, सीरियसली। यू नो इट्स, यू जस्ट सेव मी फ्रॉम दिस। मुंह बनाए, मुझे ब्लॉक करे, मुझे और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। दे प्ले माइंड गेम्स। उनको लगता है कि ब्लॉक करने से मैं चेस करूँगी उनको, या मुझे कोई ब्लॉक ऐसा करता नहीं है, बट ऐसे अगर मैं ब्लॉक करती हूँ तो रिवेंज में वो भी ब्लॉक कर देंगे ऐसा। मैंने बोला देखो भाई, मुझे तुम लोग परेशान करोगे तो मैं मुंह पे बोलूँगी कि आई एम ब्लॉकिंग यू करके। डोंट आस्क मी, डोंट सेंड मी स्टूपिड फॉरवर्ड्स, डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस, अदर पीपल्स गॉसिप, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता होता है। तो मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँ इस मामले में, बताओ मुझे। एंड आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड, आई एम नॉट योर न्यूज़ रिपोर्टर। अभी अपकमिंग फंक्शन आ रहा है जनवरी में, मैं सोच रही हूँ कि क्या स्किप करूँ क्या, रियली। यू नो ऐसे फैमिली फंक्शन में जाने का मुझे ऐसा लगता है खतरों के खिलाड़ी का कंटेस्टेंट, यू नो एक फियर फैक्टर वाला ऐसा फीलिंग आ जाता है। कौन से गेम्स अभी खेलने पड़ेंगे बाप रे, ट्रॉफी जीतने के लिए। वैसे वाली फीलिंग आती है। I'll tell you about that old man and that young boy couple. And then they came and sat zabardasti on the bench which I sat down. Then I saw the other day they were comfortable sitting on any other bench which was khali. But that day when I was sitting on that bench, वो purposely आके मेरे साथ बैठ गए। क्या अजीब से लोग हैं ना, पूरे इतने 2-3 benches खाली है, purposely they came and sat next to me. Purposely people used to come and sit next to me on that bench. फिर वो वॉचमैन लोमड़ी की तरह आ जाता है, आज तुम जल्दी आ गए, स्टॉप टॉकिंग टू मी, बिकॉज ही स्टार्टेड बिहेविंग वेरी वियर्ड, वेरी स्टूपिड। मैं स्मॉल गार्डन की बात कर रही हूँ। स्मॉल गार्डन में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर मैं जब भी पॉन्ड पार्क जाती हूँ तो आई ऑलवेज मेक अ स्मॉल गार्डन का विज़िट। तो मेरा वैसा रहता है, पॉन्ड पार्क एंड देन चर्च विज़िट, पॉन्ड पार्क, या पहले पॉन्ड पार्क होता है, चर्च विज़िट होता है, एंड देन द स्मॉल गार्डन। मेरे ये एक रूटीन होता है। या कभी कभी आई डू, नहीं अभी तक मैंने ऐसा किया नहीं है कभी भी, मे बी जस्ट चर्च विज़िट एंड स्मॉल गार्डन। वो हमेशा पॉन्ड पार्क की तरफ मेरे पैर कदम चले ही जाते हैं।
My God, I'm really looking nice. To look, to feel nice, you should also feel nice about yourself. We should feel nice about ourselves, then we look nice. आई एम हैविंग अ वेरी हार्ट ब्रेक. जैसे मेरा दिल बहुत दुखता है कि मैंने कितनी मेहनत की मेरे रिलेशनशिप में. मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेहनत कर रही हूँ, कि अभी मैं फीलिंग फुलिश हूँ. अभी मुझे अपने आप पे इतना फुलिश फीलिंग आता है. बट वो टाइम पे मैं आई वॉज, डू आई रिग्रेट, मैंने बोला अगर मैं नहीं करती तो मैं रिग्रेट करती, कि करके रिग्रेट कर रही हूँ तो आई एम फीलिंग लिटिल बेटर. क्योंकि मैंने, दिस इज़ वट दिस इज़ वट आई फेल्ट वेरी पैशनेटली अबाउट मेरे दिमाग के अंदर. तो नाउ मैं, माई हार्ट इज़ लिटरली लाइक बीटिंग फास्टर, थिंकिंग कि माई गॉड, मैं हाउ कुड आई बी सो फुलिश एंड हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड. क्योंकि दे वर टेल साइंस ऑल ओवर, लेकिन आई कुड नॉट डिसाइफर इट, आई कुड नॉट डिकोड इट. और मे बी इफ़ आई कुड डिकोड इट, आई वॉज शुगर कोटिंग इट. ऐसा होता है. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर रोमांस, इन टर्म्स विद एवरीबडी इन योर डेली लाइफ भी होता है कि वी गिव चांसेस टू पीपल कि नहीं भाई ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा. वी कवर अप फॉर देयर स्टूपिडिटी. वी apologize we because we feel obligated in chit chatting with these kind of people. अभी मेरा फेस ब्लैंक ही रहता है. देर इज़ नो एक्सप्रेशन. There is no expression, there is lack of, it's not even indifferent, it's just blank. Indifference is also hard work, it's blank. सॉरी, आई एम जस्ट लॉस्ट. तो ये मेरी जो फीलिंग्स हैं, काफ़ी सारे लोग समझते होंगे मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या कहना चाहती हूँ, या मेरे साथ वो कनेक्ट हो सकते हो तो ठीक है, नहीं हो रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, तो तुम समझोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैं क्या बोल रही हूँ. बातें बातें बातें, एक्शंस एंड वर्ड्स डोंट मैच एनीवेयर. Thoughts, words, actions don't match. हल्की हल्की सी धूप थी, बहुत ही प्यारा सा मौसम था. Let's see. Are there any New Year's resolution? There aren't any resolution per se. Let every day be beautiful a beautiful journey. That's all I'm asking God. कि मुझे इतनी ताकत दे दे कि चीज़ों को डिसाइफर करने के लिए, डिकोड करने के लिए, और टू बी स्ट्रॉन्ग, मतलब टू अंडरस्टैंड थिंग्स जो हम लोग नहीं. वी इग्नोर सच साइंस, वी इग्नोर आवर गट इंस्टिंक्ट, वी इग्नोर व्हाट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़. हम उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं.
People play this game, mind games, intermittent reinforcement, पुश पुल करते रहते हैं. जैसे तुम उनसे दूर जाते हो तो वो तुम्हें खींचते हैं, और जब तुम उनके पास जाते हो वो तुम्हें पुश करते हैं. दिस इज़ द माइंड गेम्स दिस ऑलमोस्ट एवरीबडी प्लेज, यू नो. आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया माइंड गेम खेलना. पहले ऐसे नहीं होता था. पीपल वर फेली सिंपल, इफ़ नॉट इफ़ दे वर पॉलिटिकल एंड मैनिपुलेटिव ऑल्सो. वो इस लेवल पे नहीं थे, लेकिन आजकल वो मैनिपुलेशन एकदम हाईएस्ट लेवल पे, डेमोनिक लेवल पे आ चुका है. सो अपनी रोने धोने की कहानियाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने आई पेड द साइकोलॉजिस्ट एंड ही इज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू. यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट टू देम. दे विल पुट यू इन अ बॉक्स. और फ्रेंड्स से तुम ज़्यादा उम्मीद मत करना. फ्रेंड्स वो तुम्हें एक हद तक सिंपथाइज करेंगे, एक हद तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे, बट यू हैव टू लिव योर लाइफ बाय योर सेल्फ. अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे अपने बिलीफ में तो तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता है. रिश्तेदार, फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स, and our life is made up of all these people, community people, all these people. फॉर्मेलिटी में हाय हेलो रखनी चाहिए. मैं भी रखती हूँ लोगों से हाय हेलो से कुछ ज़्यादा कभी कभी रखना पड़ता है, ठीक है, बट हाय हेलो से ज़्यादा मैं रखती भी नहीं हूँ. जस्ट टू द पॉइंट, जस्ट टू द पॉइंट, जस्ट टू द पॉइंट, जस्ट टू द पॉइंट. ट्रस्ट मी, मे बी आई एम इन द पोजिशन टू कीप इट दैट वे. मुझे आजकल किसी को मस्का मारना नहीं है, किसी को. हाँ, मैं कभी कभी ओवर एक्टिंग ज़रूर करूँगी, जस्ट लाइक यू नो, जस्ट टू यू नो बूमरैंग इफेक्ट. ओवर एक्टिंग मैं करती हूँ, मैं हिस्ट्रियनिक भी हूँ. दैट इज़ जस्ट टू मज़ा आता है लोगों का दिल जलाने में. से बड़ा मज़ा आता है मुझे. तो आई विल बी बिहेविंग अ लिटिल मोर ड्रामेटिक, और लिटिल मोर बिची, और लिटिल मोर लाइक यू नो, like the people in the reality television type. मतलब not too overtly, but yes, I'll be there. जो statements मुझे बोलने हैं मैं खुल के और openly बोलती हूँ. That is another thing. वो भी होता है. मैं ट्रिगर्ड हो जाती है ना पब्लिक, मज़ा आता है. मैंने बोला भैंडी मेरे मुंह लगोगे ना तो वैसे हो जाएगा. मैं तो खुल के भाई मेरे मुंह मत लगो. डोंट इवन बॉदर, बिकॉज आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट यू. सो कभी कभी येस, आई एम ड्रामेटिक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एंड आई बिकम लाउड एंड प्राउड, वेरी लाउड एंड प्राउड, एंड दैट टू ऑन पर्पस. दैट इज़ जस्ट टू कीप पीपल इन देयर प्लेस, कि भाई मुझे भी आता है, मैं भी बन जाऊँगी ड्रामा क्वीन. In fact, people find me very overpowering and overbearing and क्योंकि मेरी presence miss होती है, क्योंकि there's some kind of drama happening. मेरा मुंह बनाना भी ड्रामा है, सच्ची. मेरा ब्लैंक रहना भी एक ड्रामा रहता है. जबकि आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड, बट आजकल लोगों को यही ऐसे ही कम्युनिकेशन चाहिए, ओवर द टॉप, लाउड एंड प्राउड वाली. एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज. एक्सक्यूज़ मी, नॉट इंटरेस्टेड. सॉरी, नॉट रियली इंटरेस्ट. ऐसे वाली लैंग्वेज और ऐसे वाले एक्सप्रेशंस एंड स्टाइलिशली. एक्सक्यूज़ मी, माय गॉड, यू एक्सपेक्ट मी टू सिट हियर? मैं हंसती हूँ कभी कभी, लाइक लिटरली. नो, नहीं, आई विल नॉट हैव इट लाइक दिस. नो. और समटाइम्स आई एम सो ब्लैंक एंड आई एम सो क्वाइट, सो तब भी तकलीफ. एज आई सेड, समटाइम्स आई जस्ट लाइक टू ट्रिगर पीपल जस्ट लाइक दैट. मज़ा आता है मुझे दिल जलाने. एक तो मेरे आउटफिट्स और मेरे स्टाइलिंग से भी लोगों को तकलीफ़ होती है. इट्स बिकॉज आई एम स्लिम, आई एम टॉल, सो मैं नज़र में आ जाती हूँ. मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. और मैं कपड़े कुछ नए नए नहीं खरीदती हूँ. वो एक पुराना माल ही है, जस्ट उतना ही है और कुछ नहीं. तो लोगों को ऐसा लगता है हम लोग ने नए कपड़े पहने हैं, लेकिन इसको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है. या बिकॉज आई एम अ पर्सनैलिटी, आई एम नॉट जस्ट अ क्लोथ्स हॉर्स, आई एम अ पर्सनैलिटी. एंड आई एम
People say I'm brilliant, I don't know, but I can say I'm very Moffat. My disgust is on my face. अगर कोई बोर भी करता है ना तो इट इज़ लाइक दिस, देन आई गो एंड टेल दैट पर्सन क्यों वाई वर यू बोरिंग, क्यों ये सब फॉर्मेलिटी, वाई वॉज इट रिक्वायर्ड. ऐसे बस इतना ही मैं कहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ. Addictions will not help you, people are not going to help you. Addictions of any kind is not going to help you out. Face your problems, face your situations, and just be easy with yourself. Be forgiving to yourself. That's all I want to say. Take care of yourselves. And ये content कैसा लगा मुझे please बता दो. Thank you very much. Bye.